وہ بچپن سے ہی نڈر، بہادر اور بے باک تھا۔ اسے گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ شکار پر نکلتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا۔ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کا ذہین تھا اور اسی وجہ سے اس کا باپ اس پہ بھروسہ کرتا تھا۔ اس کا تعلق اوغوز ترکوں کے کائی قبیلے سے تھا۔ اس کے باپ کا نام سلیمان شاہ تھا، لیکن بعض مورخین اس کے باپ کا نام گندوز اول بتاتے ہیں۔ تاریخ اس بہادر کو ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا بانی سلطانی رائے سے آگاہ کیجیے۔ ارطغرل 1190 میں موجودہ ترکی کے صوبے بروسا میں پیدا ہوا۔ جب منگولوں نے ترکمانستان پر حملہ کیا تو بہت سے قبیلوں نے ہجرت کی اور ایشیائی کوچک کی جانب روانہ ہوئے۔ کائی قبیلے نے شام کے قریب ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالا تھا، لیکن یہ علاقہ سردیوں کے موسم کے لیے سازگار نہیں تھا۔ اس لیے ارطغرل کا باپ سلیمان شاہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد کسی بہتر مقام کی جانب ہجرت کی جائے۔ اس کے لیے اس نے ارطغرل کو حلب بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین حکومت کر رہے تھے۔ حلب کے سلطان العزیز کے پاس سلیمان شاہ کے ایلچی کے طور پر ارطغرل کو بھیجا جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کائی قبیلے کو مصیبتوں میں دھکیل دیا۔ ارطغرل غازی اپنے جانثاروں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ صلیبی عیسائی قیدیوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے قیدیوں کو بچا لیا اور صلیبیوں کو قتل کر دیا، جبکہ قیدیوں کو قبیلے میں لے آیا۔ صلیبیوں سے جھڑپ میں اس نے اناطولیہ پر قابض صلیبی سردار تیتش کا بھائی بھی قتل کر دیا، جس کے بعد صلیبی کائی قبیلے کے دشمن ہو گئے۔ جبکہ جو قیدی وہ ساتھ لایا تھا ان میں ایک بوڑھا شخص اور اس کی ایک بیٹی اور بیٹا تھا۔ یہ شخص رومی سلجوق شہزادہ غیاث الدین تھا، جسے شہزادہ نعمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بیٹی حلیمہ سلجوق شہزادی تھی، جو بعد میں ارطغرل کی بیوی بنی، اور اس کا بھائی شہزادہ شہیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت تخت کی حفاظت اور کسی بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان نے اپنے بھائیوں کو قید کر دیا تھا، لیکن شہزادہ نعمان کائی قبیلے کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس کی بازیابی کے لیے سلجوق گورنر نے بھی کائی قبیلے کو دھمکانا شروع کر دیا، لیکن کائی سردار نے اپنی روایات کا پاس رکھتے ہوئے قیدی ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ارطغرل حلب کے امیر سے ملنے گیا تو سازشیوں نے قیدیوں کو سلجوقیوں کے حوالے کر دیا۔ حلب میں ارطغرل سازشوں کا شکار ہوا، لیکن اپنی بہادری اور ذہانت سے بچ نکلا۔ ارطغرل نے جو علاقہ سلطان سے حاصل کیا وہ صلیبیوں کے قلعے کے نزدیک تھا، اور اس میں رہنے کا مطلب تھا کہ موت کے منہ میں چلے جانا۔ قبیلے کے سرداروں نے مخالفت تو کی، لیکن سلیمان شاہ نے ہجرت کی اور قبیلہ اناطولیہ کی سرحد پر آباد ہو گیا۔ تیتش نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ کائی قبیلے نے ارطغرل کی قیادت میں ان کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ کائیوں نے صلیبی قلعہ فتح کر لیا۔ 1225 میں سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد قبیلے کی سرداری کا مسئلہ سامنے آیا، لیکن اس سے قبل کہ کوئی فیصلہ ہوتا منگول ان پر حملہ کر چکے تھے۔ 1230 میں منگول تاتاری چنگیز خان کی قیادت میں چین اور ایران فتح کر چکے تھے۔ منگولوں کی ایشیائی کوچک مہم کا سربراہ نویان تھا۔ اس نے تمام ترک قبیلوں پر حملہ کیا اور انہیں روندتا چلا گیا۔ اس نے کائی قبیلے پر بھی حملہ کیا اور قبیلے کو آگ لگا دی۔ قبیلے کے لوگوں نے مشکل سے جان بچائی اور ارطغرل کی والدہ ہائمہ خاتون اور بھائی گلدارو کی قیادت میں اپنے دوست قبیلے دو درگا چلے گئے۔ دو درگا قبیلے کا سربراہ ارطغرل کا ماموں تھا۔ اس نے ان کو رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن قبیلے کے عمائدین اور اس کے ماموں اور بھائی نے اس کی مخالفت کر دی، لیکن وہ خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ اس کی دور اندیشی نے اسے بتا دیا تھا کہ منگول سکون نہیں کریں گے اور سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ اس نے اپنی بیوی حلیمہ کو سلطان علاؤ الدین کیقوباد کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ سلجوق ریاست میں مقیم ہو سکیں اور منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکے۔ ارطغرل جلد از جلد سلجوق ریاست میں جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اناطولیہ کے مغرب کے قریب ایک علاقے کا انتخاب کیا۔ نویان کے خلاف جنگ کے دوران ارطغرل کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ماموں کی وفات کے بعد اس کا ماموں زاد دو درگا قبیلے کا سربراہ بن گیا، لیکن وہ اپنی سوتیلی ماں اور غداروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکا تھا۔ ارطغرل کے قبیلے کے سردار کا انتخاب کیا گیا تو اس کے بھائی گلداروں نے سرداروں کو پیسے دے کر ساتھ میں لایا اور سردار بن گیا۔ اس کا سردار بننے کا مقصد تھا کہ وہ ارطغرل کو اناطولیہ جانے سے روک سکے۔ ارطغرل کے بھائی کی پشت پر سلجوق سلطان کا نامزد کردہ وزیر سعد الدین کوپک تھا۔ سعد الدین کوپک ایک فتنہ پرور شخص تھا۔ سعد الدین کوپک سلطان کو مار کر سلجوقی تخت پر قبضے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اسے ارطغرل اس راہ میں رکاوٹ نظر آتا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے سردار نویان کو جنگ میں شکست دی اور صلیبیوں کی سرحد
सरहद पर हिजरत का फैसला कर लिया। एर्तुगरुल को एक दीनी शख्सियत इब्नुल अरबी की रहनुमाई भी हासिल थी, जो कि उसकी हर फैसले पर रहनुमाई करते थे। उसके साथ साथ एर्तुगरुल की बहादुरी की वजह से तुर्कों की तंजीम सफेद दाढ़ी वाले भी उसकी पुष्ट पर थे और उनकी मर्जी से ही वो सलीबियों के करीबी सरहद पर हिजरत करना चाह रहा था। उसने अपने भाई से बगावत की और अपने जानिसारों, वालिदा, छोटे भाई, बीवी और कबीले के 400 अफराद के साथ हिजरत का फैसला किया और अनातोलिया की मगरबी सरहद पर आबाद हो गया। यहाँ आबाद होकर वो काई कबीले के उस टुकड़े का सरदार बन गया। नई जगह हिजरत के बाद हालात साजगार न हुए और कबीले में फाकों की नौबत आने लगी। इस दौरान एर्तुगरुल के कबीले की खातीन कालीन बनाने का काम करती रहीं और उन कालीनों को बेचकर अनाज लाया जाता रहा, लेकिन वो खाने के लिए बहुत कम था। मगरबी सरहद पर उसका सबसे बड़ा हरीफ चाबेदार कबीला था, जिसके सरदार जानेदार बे के बेटे औराल ने एर्तुगरुल की मुखालिफत की और उसके कालीनों के काफिले पर हमला करके उसके मुतअद्दिद सिपाही कत्ल कर दिए और उसके साथ साथ तमाम माल जला दिया, जिसके बाद उसके कबीले पर मजीद मुसीबतें टूट पड़ी। वो जिस बाजार में तिजारत करते थे उस बाजार को हानली बाजार कहा जाता था। ये बाजार आज भी तुर्की में हानली बाजार के नाम से मौजूद है। इसका मालिक सैमून कुस्तंतीनिया के सलीबियों का जासूस था। जब एर्तुगरुल को मालूम हुआ तो सफेद दाढ़ी वालों ने उसे इस जासूस को खत्म करने का हुक्म दिया। एर्तुगरुल ने अपने सिपाही नूरगुल के साथ मिलकर उसको बेनकाब किया और उसके खिलाफ जंग करके हानली बाजार पर कब्जा कर लिया। उसने चाबेदार कबीले के सरदार के बेटे औराल से भी इंतकाम लेने का फैसला किया, लेकिन अमीर सादुद्दीन कोपक ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। अमीर सादुद्दीन चूंकि उस इलाके का सरदार आला था, इसलिए उसकी बात का मानना जरूरी था, लेकिन एर्तुगरुल उसको खातिर में नहीं लाता था। इस दौरान सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाबाद का उस इलाके से गुजर हुआ तो उसने हानली बाजार के रोमी और ईसाई ताजरों से जब एर्तुगरुल की ईमानदारी और बहादुरी का तज़किरा सुना तो वो उससे बहुत मुतासिर हुआ। अमीर सादुद्दीन ने सुल्तान को बरगलाया कि एर्तुगरुल रियासत के अंदर रियासत बना रहा है और हानली बाजार को सल्तनत को देने की बजाय उस पर खुद काबिज हो गया है। लेकिन सल्जूक सुल्तान पहले ही एर्तुगरुल का मद्दाह हो चुका था और तुर्कों की रिवायात के मुताबिक तलवार से हासिल की गई जगह उसकी मिल्कियत होता है। सुल्तान ने एर्तुगरुल को इस सारे इलाके का सरदार आला बना दिया और सादुद्दीन को वापस कूनिया बुला लिया। सरदार आला के साथ साथ उसने एर्तुगरुल को कारा चायसार कला फतह करने का भी हुक्म दिया, क्योंकि उन्होंने सुल्तान पर हमला करने की कोशिश की थी। सुल्तान ने उसको वादा किया कि वो जल्द अपनी एक फौज उसकी मदद को भेजेगा। उन सब जंगों में चाबेदार कबीले का औराल बे एर्तुगरुल के खिलाफ रहा, मगर उसका भाई आलियार और बहन इस्लाहान ने एर्तुगरुल का साथ दिया। आलियार जानफिशानी से लड़ते हुए शहीद हो गया। उसके भाई औराल को एर्तुगरुल ने बगावत के जुर्म में कत्ल कर दिया। उसकी बहन इस्लाहान को कबीले की सरबराह बना दिया गया और एर्तुगरुल ने अपने सबसे बेहतरीन दोस्त तुर्गुत, जिसे नूरगुल भी कहा जाता है, उससे उसकी शादी करवा दी। लेकिन याद रहे, नूरगुल की पहली बीवी मंगोलों के हमलों में जिंदा जला दी गई थी। यूं दोनों कबीलों में दोस्ती की फजा पैदा हो गई। इस दौरान एक झड़प में कले का कमांडर वेसिलियोस एर्तुगरुल के हाथों मारा गया और निकिया के शहंशाह ने आरस को गवर्नर बनाकर भेजा। आरस ने एर्तुगरुल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जंग रोक दी, लेकिन अमीर सादुद्दीन कोपक और चाबेदार कबीले की दूसरी शाख के सरदार बहादुर बे के साथ मिलकर उसने एर्तुगरुल के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उसने एर्तुगरुल के बेटे को भी कैद कर लिया और बहादुर बे की साजिशों में मदद की। एर्तुगरुल ने बहादुर को कत्ल कर दिया और चाबेदार कबीले का नया सरदार इस्लाहान के शौहर नूरगुल को बना दिया। उससे निमटकर एर्तुगरुल ने सुल्तान की फौज का इंतजार किए बगैर ही अपने सिपाहियों के साथ मिलकर कले पर हमला किया और कले पर कब्जा कर लिया। कले का गवर्नर आरस अपनी जान बचाकर भाग गया और कले पर सल्जूक सल्तनत और काई कबीले का परचम लहरा दिया गया। कारा चायसार कला और हानली बाजार फतह करने के बाद एर्तुगरुल का हर तरफ चर्चा होने लगा। एर्तुगरुल ने कले में अपने भाई सारिम को नायब मुकर्रर किया और सादुद्दीन कोपक के साजिशों से सुल्तान को आगाह करने कूनिया चला गया। कूनिया में सुल्तान को उसने अमीर सादुद्दीन के खिलाफ सबूत दिए, लेकिन वो साजिशी अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। 1237 में उसने सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाबाद और उसके नामजद जानशीन शहजादा कलीज अरसलान को कत्ल करवाकर गयासुद्दीन कैसरो को सल्जूक सुल्तान बना दिया। सुल्तान के कत्ल का इल्जाम एर्तुगरुल पर लगा दिया और उसे कैद में डाल दिया गया। एर्तुगरुल को कैद में डालने के बाद सल्तनत पर अमीर सादुद्दीन कोपक का कब्जा हो गया। उसने कारा चायसार कले और उस इलाके से एर्तुगरुल की सरदारी खत्म करवा दी और गुनाल्प नामी कलेदार को सरदार आला और कले का निगरान बना दिया। लेकिन जब सुल्तान गयासुद्दीन को मालूम हुआ कि उसके बाप को एर्तुगरुल ने नहीं बल्कि उसकी मां के साथ मिलकर सादुद्दीन कोपक ने कत्ल करवाया है, तो उसने एर्तुगरुल को दोबारा सरदार आला बनाया और एर्तुगरुल को आजाद करवा दिया।
सुल्तान गयासुद्दीन ने अमीर सादुद्दीन को कत्ल करने का हुक्म जारी किया और एर्तुगरुल को ये जिम्मेदारी सौंपी। एर्तुगरुल ने गुलाब बे को इस साजिशी शख्स की असलियत से आगाह किया और उसके साथ मिलकर सादुद्दीन कोपक का खात्मा किया और सल्तनत को दोबारा पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन उसने गुलाब को कारा चायसार कले का निगरान ही रहने दिया और खुद कबीले समेत सोगोत हिजरत कर गया। सोगोत वह इलाका था जो उसकी बहादुरी से खुश होकर सुल्तान अलाउद्दीन ने उसे इनायत किया था और आज़ादी दी थी कि वो चाहे तो इर्द गिर्द के इलाके फतह करके अपनी जागीर बढ़ा सकता है। उसने हानली बाजार भी सल्जूक रियासत को सौंप दी और खुद सोगोत हिजरत करने की तैयारी करने लगा। इस दौरान ओक्ताई खान ने दोबारा अनातोलिया पर हमला करने का ऐलान किया और नव्यान को यह काम सौंपा गया कि वो या तो सुल्तान गयासुद्दीन को अतात पर राजी करे या फिर अनातोलिया को तबाह बर्बाद कर दे। नव्यान ने जब सुल्तान गयासुद्दीन को 2 गुना लगान और अतात का हुक्म दिया तो उसने एक सुलहनामा देकर एर्तुगरुल को नव्यान के साथ ओक्ताई खान के पास सफीर बनाकर भेजा। एर्तुगरुल की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए नव्यान की बहन ने काई कबीले पर हमला करने का मंसूबा बनाया, लेकिन वो कामयाब न हो सकी और नव्यान की बहन मारी गई। उधर जब एर्तुगरुल ओक्ताई खान के पास पहुंचा तो उसने अमन मुआहिदे पर मोहर लगा दी और 2 साल के लिए सल्जूकों को मोहलत मिल गई। लेकिन इसी दिन ओक्ताई खान मारा गया और उसकी मौत का जिम्मेदार एर्तुगरुल को करार दिया गया, लेकिन वो भाग निकलने में कामयाब हो गया। नव्यान ने उसका ताकुब किया लेकिन नाकाम रहा। नव्यान वापस चला गया और ओक्ताई खान के बेटे कदुन खान को, जो उसका जानशीन था, उसे अनातोलिया पर हमले के लिए तैयार किया, जिसके नतीजे में 1243 में कोसे डाग की जंग लड़ी गई। एर्तुगरुल जब वापस कबीले पहुंचा तो उसने सोगोत जाने के लिए कबीले को तैयारियां शुरू करने का हुक्म दिया। इस दौरान सोगोत की सरहद पर मौजूद कले के गवर्नर ने उसके सिपाहियों पर हमला किया और उसके जवाबी हमले में उसने कले के गवर्नर को मार दिया और कले पर कब्जा करने का फैसला किया। लेकिन ऐन उस वक्त नीकिया के शहंशाह का बेटा प्रिंस थ्योडर बजाते खुद उसके पास आया और उससे शहंशाह की जानिब से माजरत की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके बाद सोगोत में सलीबियों की जानिब से खतरा टल गया और उसने कबीले समेत सोगोत हिजरत कर ली, जो कि अब एर्तुगरुल गाजी की जागीर थी। कोसे डाग की जंग में सल्जूकों को बुरी तरह शिकस्त हुई और मंगोलों ने अनातोलिया पर कब्जा कर लिया और इर्द गिर्द के तमाम कलेदार, कबीलों के सरदार, यहाँ तक कि सुल्तान भी मंगोलों को टैक्स देने पर मजबूर हो गया। सल्जूक दरबार में सुल्तान मंगोलों के हाथ की कठपुतली बन गया। गयासुद्दीन का जानशीन मुकम्मल तौर पर मंगोलों के हाथों में खेल रहा था। मुस्लिम उमरा मंगोलों से सोना लेकर उनके मफाद के लिए काम कर रहे थे। सुल्तान के बड़े बेटे अज़ाउद्दीन कैकाउस ने मंगोलों से बगावत की, लेकिन उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने नेकिया में जाकर पनाह ली और उसका भाई रुकनुद्दीन कलीज अरसलान सुल्तान बन गया। मंगोलों का हुक्मरान हलाकू खान बन गया था, जो मशरिक में तबरेज तक खून की नदियां बहा चुका था और अनकरीब अनातोलिया के बाकियों को रौंदने का मंसूबा बना रहा था। इस दौरान एर्तुगरुल ने सोगोत में अपना कबीला बसा लिया और वहां से मंगोलों के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखी, लेकिन ये जिद्दोजहद ज़ाहिरी नहीं थी। ज़ाहिरी तौर पर वो मंगोलों को टैक्स देता था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो मंगोलों के खिलाफ एक बड़ा मंसूबा तैयार कर रहा था। उसने मिस्र के ममलूक सुल्तान मलिकुल ज़ाहिर रुकनुद्दीन बेबरस और चंगेज खान के पोते बरका खान, जिसने अपने कबीले के साथ इस्लाम कबूल कर लिया था और मंगोलों के खिलाफ जंग जारी रखे हुए था, उसके साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। सुल्तान अज़ाउद्दीन कैकाउस और उसके हामी कबाइल को इकट्ठा किया और उन 2 बड़ी ताकतों को मंगोलों से लड़ने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन अंदरूनी साजिशों और सलीबी कले के गद्दार गवर्नर की तरफ से हमलों के बाद एर्तुगरुल बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि अपने अजीम मकसद को पूरा करने के लिए एक बड़ी जंग जरूरी थी। लेकिन इस दौरान वो किसी तौर भी बाज़ंतीनियों से जंग का सोच भी नहीं सकता था। मंगोलों की शोरश जारी थी, जबकि कई कबीले के लोग उनसे मिल चुके थे। एर्तुगरुल का सोगोत से कंट्रोल खत्म करने के लिए सल्जूक वजीर बहाउद्दीन ने उमरूलो कबीले को सोगोत में बसाने का फैसला किया। उमरूलो कबीले का सरबराह एर्तुगरुल के खिलाफ था, लेकिन उसकी बेटी एर्तुगरुल को पसंद करने लगी और बाद में एर्तुगरुल ने उससे शादी कर ली। सलीबी बागियों ने कले पर कब्जा कर लिया। उनका सरबराह कमांडर ड्रागोस था, जो एर्तुगरुल को सोगोत से निकालना चाहता था। उसने उमरूलो कबीले के सरदार को कत्ल करके उसके इल्जाम एर्तुगरुल के बेटे गुंदोज एलब पर लगा दिया, जिसके बाद दोनों कबीलों में लड़ाई का अंदेशा हो गया। लेकिन एर्तुगरुल की जहानत और समझदारी से वो इस मुसीबत से बच निकले। उमरू बे के बाद उसका बेटा बोलाद बे उस कबीले का सरबराह बना। बोलाद बे मंगोलों का खास आदमी था और बागी कबाइल के खिलाफ एक मुहिम जारी रखे हुए था। अपनी असलियत छुपाए हुए वो अलबास्ती के नाम से तुर्क कबीलों के लिए दहशत बना हुआ था। दूसरी तरफ ड्रैगोस भी गुमनाम था। एर्तुगरुल को 2 गुमनाम दुश्मनों का सामना था और वो दोनों उसकी नजरों के सामने थे, यानी अलबास्ती बोलाद बे के रूप में और ड्रैगोस सोगोत के कलीसा में जिंगोच के रूप में। अलबास्ती ने एर्तुगरुल के भाई गुलदारों के कबीले को भी तबाह कर दिया और वो अपनी जान बचाकर पहाड़ों में रूपोश हो गया था। एर्तुगरुल के सामने नादीदा दुश्मन थे और एक अजीम मकसद उसका मुंतजिर था। इस सूरत हाल में वो किसी तौर इन मामूली दुश्मनों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। एर्तुगरुल ने मंगोलों के 2 सरदारों को कत्ल कर दिया, जो उसके कबीले पर हमला आवर हुए थे। उनकी मौत के बाद हलाकू खान का भाई एरुक बोका उसके मुकाबले के लिए सोगोत आ गया। उसने अलबास्ती की मदद की और एर्तुगरुल के खिलाफ जाल बुनने शुरू किए, लेकिन एर्तुगरुल एक मरतबा फिर
اپنی ذہانت سے بچ نکلا۔ اس نے ڈریگوس کو بے نقاب کیا اور اسے قتل کر دیا۔ الباستی بھی جب کھل کر ارطغرل کے سامنے آیا تو اس کے بھائی گلداروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل ان دشمنوں سے نمٹنے کے بعد مغرب میں برقع خان سے ملاقات کے لیے چلا گیا۔ ایروک بوگا کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اس کے پیچھے چلا گیا۔ ارطغرل نے برقع خان کے غدار وزیر کو بے نقاب کیا اور ایروک بوگا بھی برقع خان کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل نے برقع خان کے ساتھ مل کر منگولوں سے جنگ کی۔ اس نے برقع خان کو یقین دلایا کہ جب وہ منگولوں پر حملہ کرے گا تو اناطولیہ کے ترک اس کے شانہ بشانہ ہوں گے، جبکہ سلطان ظاہر بیبرس بھی اپنی فوج کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ ارطغرل واپس قبیلے آ گیا اور اپنے چھوٹے بھائی دندار بے کو قائم مقام بنا کر اس جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو شکست ہوئی۔ لڑائی کے دوران ہی ہلاکو خان علیل ہو گیا اور بیماری سے چل بسا۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ بغداد سے خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد خلافت عباسیہ قاہرہ منتقل ہو گئی۔ سلطان بیبرس بھی واپس مصر چلا گیا اور ارطغرل جنگ سے غازی بن کر لوٹا، اسی لیے غازی اس کے نام کا حصہ بن گیا۔ وہ 1280 میں 90 سال کی عمر میں سوگوت میں فوت ہوا اور اسی شہر میں اس کا مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ ارطغرل غازی کی بہادری اور شجاعت اور فروغ اسلام کی خاطر جدوجہد کی نشانی کے طور پر ترکمانستان میں اس کے نام پر ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے۔